So, a very good morning, class. Welcome to lecture 19. And today we'll start a new unit of renewable energy sources according to AKTU syllabus. And in that unit, we'll cover the two topics, that is thermo-ionic conversion and the wind energy. Okay, so in this lecture, we'll discuss in detail about the thermo-ionic conversion system. So this is also a renewable source of energy, a very new kind and new type of energy that is counted under non-conventional energy sources, that is thermoionic conversion. So in this lecture, one by one, we'll look towards its principal application, advantages, limitation, etc. Right. So before moving further, first of all, let us know what is actually thermoionic a word mean. Okay, so we'll look towards the PPT that I have prepared for you. Let us have a look towards it. So this lecture will start with the introduction part. Okay, इंट्रोडक्शन में क्या कहता है, थर्मोआयनिक पावर कन्वर्टर है क्या, ये कौन सा डिवाइस है, पहले तो हमें ये जान लेने की कोशिश करनी चाहिए. ओके, so thermoionic power converter is a static device that converts heat into electricity by boiling the electrons from a hot emitter surface, and that hot emitter surface is approx 1800 Kelvin across a small inter-electrode gap, and that gap is less than 0.5 mm, to a cooler collector surface approximately 1000 Kelvin. Okay, so thermoionic power converter is basically about the boiling electrons, right? It is a device, ये एक device है that converts the heat into electricity. देखो, one by one समझने की कोशिश करते हैं. पहले तो ये जान लो कि थर्मोआयनिक पावर कन्वर्टर क्या है. ये एक स्टैटिक डिवाइस है, डायनेमिक डिवाइस नहीं है. ये कौन सा डिवाइस है? स्टैटिक डिवाइस है. And this static device is used to convert the heat into electricity. Okay, इतना तो क्लियर है कि it is a device which is used to convert the heat into electricity. But what will be the medium? That medium will be by boiling electrons from a hot emitter surface. Okay, जब एक hot emitter surface है, वहां से हमारा क्या emit होगा? वहां से हमारा emit होगा electrons, right? And that electron will be have a characteristic of boiling electron. So the conversion of heat into electricity takes place by boiling electrons, and these electrons are emitted from a hot emitter surface, and that hot emitter surface has a temperature approximately 1800 Kelvin, right? So there will be emission of boiling electron from this hot emitter surface, which has a temperature approx 1800 Kelvin, across a small inter-electrode gap. Okay, and that gap is less than 0.5 mm, to a cooler collector surface approx 1000 Kelvin. बस इतना जानने की कोशिश करो. ठीक है, क्या कि थर्मो आयनिक पावर कन्वर्टर एक स्टैटिक डिवाइस है जो हीट को इलेक्ट्रिसिटी में बॉइलिंग इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू, जो इलेक्ट्रॉन्स हॉट सरफेस से 1800 केल्विन पे एमिट होते हैं, उसको पास करता है अक्रॉस अ स्मॉल इंटर इलेक्ट्रोड गैप which is less than 0.5 mm, and this is collected to a cooler collector surface that is 1000 Kelvin. This is all about thermoionic power converter, right? This is a introduction of the thermoionic power converter. Okay, this is the basic definition, that it is a static device that converts the heat into electricity by boiling electrons from a hot emitter surface approximately 1800 Kelvin
across a small inter-electrode gap which is less than 0.5 mm to a cooler collector surface that is approximately 1000 Kelvin, right? So अगर हमको थोड़ा सा और डिटेल देखना हो कि थर्मो आयनिक कन्वर्जन के बारे में, तो हम यहाँ से देख सकते हैं। अगर मैं आपको बताऊं, देखो, we can say that it is another form of direct conversion of heat energy, right? मैं अगर इसकी समरी बनाऊं कि व्हाट इज थर्मोआयनिक जनरेशन, तो एक समराइज करने की कोशिश करूं तो ये है कि इट इज अनदर फॉर्म ऑफ डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ हीट एनर्जी to electrical energy, okay, and has been achieved in the thermoionic converter. So we can say it is another form of direct conversion of heat energy into electrical energy. Ab it utilizes the thermoionic emission effect, that is the emission of electron. ठीक है, very good. थर्मोआयनिक एमिशन इफेक्ट का मतलब समझते हो? इसका मतलब होता है the emission of the electron from heated metal, ठीक है, and some oxide surface. The energy required to extract an electron from the metal is an important parameter known as the work function of the metal. Typical values of the order of a few electron volts. The value of the work function varies with the nature of the metal and its surface condition. ठीक है, समझ आया? जो मैंने अभी आपको बताया है ना, वही चीज है। ये क्या कह रहा है, देखो, ये कह रहा है कि थर्मोआयनिक जनरेशन इट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ हीट एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और इसको हम कैसे अचीव करते हैं? इन द थर्मोआयनिक कन्वर्टर, राइट? एंड हाउ वी अचीव इट? it utilizes the thermoionic emission effect. और thermoionic emission effect क्या कहता है? That is the emission of electron from a heated metal or some oxide surface, okay. The and the energy required to extract an electron from the metal is an important parameter, right, known as the work function of the metal. जो हम इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, यही एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है और इसी को हम कहते हैं वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल. टिपिकल वैल्यूज ऑफ द ऑर्डर ऑफ अ फ्यू इलेक्ट्रॉन इज volts, right? The value of the work function varies with the nature of the metal and its surface condition. Okay, now moving towards the next step. A thermoionic generator consists of one or more of these converters. These converters coupled to give desired power output. अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है थर्मोआयनिक जनरेशन के बारे में, पहले तो ये समझने की कोशिश करो कि मैं पहला स्टेटमेंट क्या बोला हूं. मैंने पहला स्टेटमेंट ये बोला है कि a thermoionic power converter is a static device that converts heat into electricity. ठीक है, तो पहली चीज ये जान लो कि ये एक डिवाइस है जो हीट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है, राइट? बट हाउ? बाय बॉइलिंग इलेक्ट्रॉन, बाय द इमिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन. और ये इमिशन कहां से होगा इस इलेक्ट्रॉन का? फ्रॉम अ हॉट एमिटर सरफेस. फ्रॉम अ हॉट एमिटर सरफेस. दैट सरफेस हैज अ टेम्परेचर ऑफ अबाउट 1800 Kelvin, which is passed through across a small inter-electrode gap, and that gap is less than 0.5 mm to a cooler collector surface, and that cooler collector surface has a temperature approximately 1000 Kelvin. अब समझ में आया? Thermoionic generator consists of one or more of these converters coupled to give desired power output. Thermoionic generators can be operated from any primary heat source. For low power level, 3 kilowatt or less solar energy can be used. For high power level, 50 kilowatt or more nuclear heat source can be used. देखो, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है. जब थर्मोआयनिक कन्वर्टर की बात करते हैं
तो पहला तो प्रिंसिपल यही है कि हीट एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो हमें हीट एनर्जी का सोर्स चाहिए, तभी ना हम उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। और उस हीट एनर्जी से सरफेस से जब इमिशन होगा इलेक्ट्रोड का, उसको हम पास करेंगे एक इंटर इलेक्ट्रोड गैप से, और वो गैप होगा 5.5 mm से लेस। और इसको हम किसके कहाँ पे कलेक्ट करेंगे? वी विल कलेक्ट इट टू अ कूलर कलेक्टर सरफेस, और वो उसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 1000 केल्विन। तो आपका पहले का टेम्परेचर कितना था जहां से एमिशन हुआ इलेक्ट्रॉन का? 1800 केल्विन। और जहां पे हम कलेक्ट कर रहे हैं, दैट इज अ कलेक्टर सरफेस और दैट इज अ कूलर सरफेस, उसका टेम्परेचर कितना है? इट्स अप्रोक्सीमेटली 1000 केल्विन, राइट। तो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से हम ईएमएफ को जनरेट करेंगे और हम इलेक्ट्रिसिटी को कन्वर्ट करेंगे। और ये हमें कहां से मिल रहा है? कौन से सोर्स से मिल रहा है? हीट सरफेस से मिल रहा है। और हीट एनर्जी को हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। दैट्स ऑल। यही है थर्मो आयनिक कन्वर्जन। थर्मो आयनिक का मतलब हो गया कि एमिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द hotter surface which has a temperature about 1800 degree 1800 kelvin, sorry, 1800 kelvin, and collector surface which have a temperature about 1000 kelvin. That's all. अब इसी थर्मोआयनिक जनरेटर को, 3-4 जनरेटर को, कन्वर्टर को हम कपल कर देंगे, डिजायर्ड आउटपुट मिल जाएगा, ठीक है। और इसका जो ऑपरेशन है वो प्राइमरी हीट सोर्स से होता है। लो पावर लेवल के लिए दैट इज 3 किलोवाट और लेस के लिए सोलर एनर्जी यूज कर सकते हैं हीट सोर्स, और हाई पावर लेवल के लिए जैसे 50 किलोवाट है या उससे ज्यादा है तो न्यूक्लियर हीट सोर्स हम यूज कर सकते हैं। दैट्स ऑल। समझ आ गया? अच्छा, अब इसकी हिस्ट्री जानने की कोशिश करते हैं। In 1883, Edison discovered release of electron from a hot body. ठीक है, जो इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन सबसे पहले डिवाइस हुआ था उसको एडिशन ने किया था 1883 में, ठीक है। इन 1883 एडिशन डिस्कवर्ड रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ हॉट बॉडी। देन इन 1904 फ्लेमिंग इन्वेंटेड द थर्मोआयनिक डायोड rectifier, and in 1915 Sizzler proposed the thermoionic conversion. After 1950 serious research on this began. तो ये आपका इसका स्टेप बाय स्टेप, ईयर बाय ईयर इसका जो रिसर्च प्रोसेस है वो ऐसे ही है कि 1883 में एडिसन ने डिस्कवर किया रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ हॉट बॉडी। 1904 में फ्लेमिंग ने इन्वेंट किया थर्मोआयनिक डायोड रेक्टिफायर, और 1955 में प्रपोज किया गया थर्मोआयनिक कन्वर्जन, और 1950 के बाद इस पे रिसर्च स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो till now we have see what is thermoionic generation. इसका प्रिंसिपल थोड़ा सा देखते हैं। इन द प्रिंसिपल अ थर्मोआयनिक कंसिस्ट ऑफ टू मेटल, दो मेटल, यहां हुआ दो इलेक्ट्रोड with different work function scaled sealed in a evacuated vessel, right? इसमें हमने दो मेटल लिया, दैट इज दो इलेक्ट्रोड लिया with different work function sealed in a evacuated vessel. The electrode with the large work function is maintained at a higher temperature than one with the smaller work function. The system consists of two electrodes held in a container filled with ionized cesium vapor. अब इस दो इलेक्ट्रोड को हमने एक कंटेनर में लिया, उस कंटेनर में हम क्या ले रहे हैं? आयोनाइज्ड सीजियम वेपर। हीटिंग वन इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रॉन आर इमिटेड। अब देखो, एक इलेक्ट्रोड को जब हीट करोगे तो क्या होगा? उस सरफेस से इलेक्ट्रॉन एमिट होगा, और क्या करेगा? दैट विल ट्रेवल टू द अपोजिट, दैट इज कोल्डर इलेक्ट्रोड। बहुत इजी है, इसको समझने की कोशिश करो। हमने एक वेसल लिया, ठीक है, उस वेसल में हमने क्या लिया? आयोनाइज्ड सीजियम वेपर, और हमने दो मेटल लिया, वो दो मेटल क्या है? हमारे दो इलेक्ट्रोड है, ठीक है। एक कंटेनर लिया विच इज फिल्ड विद आयोनाइज्ड सीजियम वेपर, और उसमें हमने दो इलेक्ट्रोड लिए, ठीक है, दो मेटल लिए, दैट इज टू इलेक्ट्रोड। अब हीटिंग वन इलेक्ट्रोड, हम एक इलेक्ट्रोड को हीट करना स्टार्ट करेंगे तो वहां से क्या होगा? एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन विल स्टार्ट, और वो एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? इट विल ट्रेवल टू द अपोजिट डायरेक्शन,
ठीक है भाई, एमिशन हुआ तो वो दूसरे डायरेक्शन में जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, एंड दैट अपोजिट डायरेक्शन हैज अ कोल्डर इलेक्ट्रोड। ठीक है, द हॉटर इलेक्ट्रोड that is the emitter emits the electron, ठीक है, negative charge, and so acquires a positive charge, whereas the colder electrode or collector collects the electron and becomes the negative charge। समझो, हमारे पास हॉटर इलेक्ट्रोड है, कोल्डर इलेक्ट्रोड है। इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन क्या है हमारे पास? आयोनाइज सीजियम वेपर है। हमने पहला इलेक्ट्रोड, मतलब जो हॉटर इलेक्ट्रोड, उसको हीट करना स्टार्ट कर रहे हैं, वहां से इलेक्ट्रॉन एमिट करना स्टार्ट कर रहा है। जब हम उसको हीट करना स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे ही हीट कर रहे हैं, वहां से क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहा है, और ये जो है ये नेगेटिव चार्ज एमिट कर रहा है, तो ये क्या एक्वायर कर लेगा? ये पॉजिटिव चार्ज को एक्वायर कर लेगा। और कोल्डर सरफेस पे क्या हो रहा है? क्या कलेक्ट कर रहे हैं? वो पॉजिटिव था, लेकिन ये नेगेटिव किधर जाएगा? ये वाला उस पे फोल्डर पे चला जाएगा, तो वहां पे कौन सा हो जाएगा? वो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो इसके वजह से क्या होगा? अ वोल्टेज, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स विल डेवलप, दस अ वोल्टेज दैट इज अ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स डेवलप between the two electrodes, and a direct electric current will flow in an external circuit connecting them. The voltage may be 1 volt। यही है, यही है आपका थर्मो आयनिक। एक हमने इवैक्यूएटेड वेसल ले लिया। देखो, इस डायग्राम को समझने की कोशिश करो, अपने आप से समझ में आ जाएगा। ये हमारे पास इवैक्यूएटेड वेसल है, ठीक है। हमने दो इलेक्ट्रोड लिया, एक इलेक्ट्रोड हमारे पास ये है और दूसरा इलेक्ट्रोड हमारे पास ये है, मतलब दो मेटल्स का बना हुआ है, ठीक है। इसको हमने इसमें डिप किया। अब हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पे इसको हीट कर रहे हैं। हीट करने की वजह से यहाँ क्या होगा? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एमिट होगा, ठीक है। इस सरफेस से जब इलेक्ट्रॉन एमिट होगा तो ये दूसरे अपोजिट डायरेक्शन में, और ये किधर की तरफ जाएगा? कोल्डर इलेक्ट्रोड की तरफ। देखो, अब ये जो है आपका है, ये कौन सा है? ये हॉटर इलेक्ट्रोड है, ठीक है। ये हॉटर इलेक्ट्रोड है, ठीक। तो हॉटर इलेक्ट्रोड जो होता है वो क्या है? ये आपका नेगेटिव है। तो इस नेगेटिव से जब इलेक्ट्रॉन एमिट होगा, तो जब ई मतलब नेगेटिव इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ ट्रेवल करेगा, तो ये क्या एक्वायर कर लेगा? ये पॉजिटिव एक्वायर कर लेगा, ठीक है। ये ऑलरेडी पॉजिटिव है, कोल्डर वाला क्या है? ये पॉजिटिव है। तो जब ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ माइग्रेट करके आएगा, तो ये क्या कर लेगा? ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, मतलब ये आपका कैथोड हो गया, ये आपका एनोड हो गया। अब इसकी वजह से क्या होगा? इस पॉजिटिव और नेगेटिव की वजह से और इस इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन की वजह से इस इवैक्यूएटेड जो वेसल में है, क्या होगा? एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स डेवलप हो जाएगा, और ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है? इट इज ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट हो गया तो क्या मिल गया? वोल्टेज। वोल्टेज मिला तो क्या? करंट। करंट क्या होगा? फ्लो होगा, और फ्लो की वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। तो यही है थर्मोआयनिक कन्वर्जन। ये एक हॉटर सरफेस है, इस हॉटर सरफेस से हम जो है इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहा है जो 1200 केल्विन है। एक कोल्डर सरफेस है, उसको हम कलेक्ट कर रहे हैं। ये कितना है? ये 1200 केल्विन है, ठीक है। ये 1200 केल्विन है, ठीक। ये 1200 केल्विन है, और ये कितना है? ये 1000 केल्विन है। बस यही है आपका, 1000 केल्विन है। ये 1200 केल्विन था, ये 1000 केल्विन हो गया। दैट इज ऑल। यही है थर्मोआयनिक कन्वर्जन प्रिंसिपल, राइट? समझ आया? ओके, आगे बढ़ते हैं। So a thermoionic converter is a form of heat engine. In principle, heat is taken in and at upper, that is emitter temperature. What is converted into electric energy, and the remainder is discharged or removed at the lower, that is collector temperature. The thermoionic converter will continue to generate the electric power as long as heat is supplied to the emitter and the temperature difference is maintained between the two and the collection, and it will be collected to achieve this emission of the electron rate. Hence a significant current output as well as a high efficiency. The emitter temperature in thermoionic converter containing cesium should be at least
1000 डिग्री सेंटीग्रेड, द एफिशिएंसी इज देन अबाउट 10%। ठीक है, ये है आपका थर्मो आयनिक कन्वर्जन सिस्टम। थर्मो आयनिक कन्वर्जन सिस्टम इन शॉर्ट, तो सरफेस के टेम्परेचर के डिफरेंस से हम क्या कर रहे हैं, हम एक ईएमएफ को जनरेट करके और हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा और देखते हैं। ये तो इसकी हिस्ट्री हमने देख ली, प्रिंसिपल देख लिया। ये आपका इसका अगर कॉमन कंपोनेंट्स की बात करें तो इट इज इट्स कॉमन कंपोनेंट, जो मैंने अभी आपको पिछले वाले स्कीमेटिक डायग्राम में दिखाया था। ठीक है, तो थोड़ा सा ये इसको इस डायग्राम को रीड करने की कोशिश करो। ये जो है आपका हीट सोर्स है, दिस एंड दिस इज योर हीट सोर्स। ठीक है, ये इलेक्ट्रोड क्या है, ये हीट सोर्स है, और ये क्या है बेसिकली, ये कैथोड है। राइट, ये आपका इवैक्यूएटेड, ये आपका इवैक्यूएटेड कंटेनर है जिसमें वेपर सीजियम हमने उसमें इंसर्ट किया है। ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन यहां से एमिट होगा इस सरफेस से और इधर की तरफ मूव करेगा, और यहाँ पे ये फोल्डर कलेक्टर पे जाके कलेक्ट होगा। राइट, तो ये है आपका एमिटर टेम्परेचर कितना होना चाहिए, इट शुड बी 1600 टू 2000 केल्विन। अगर हम इसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करें तो इट इज 2420 टू 3140 फ़ारेनहाइट। कलेक्टर टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 800 टू 1100 केल्विन, दैट इज 980 टू 1520 डिग्री फ़ारेनहाइट। इलेक्ट्रोलाइट एफिशिएंसी कितनी होनी चाहिए, 20%। ठीक है, तो हमें एफिशिएंसी अगर हमको देखें थर्मो आयनिक कन्वर्जन का, तो इट इज ऑल अबाउट 10%, और ये डिपेंड करेगा आपके हीट सरफेस पे। तो जो हीट सरफेस है, मतलब जो सोर्स है, वो कौन कौन से हो सकते हैं, वो सन भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन अगर हाई सोर्स चाहिए, हाई हीट टेम्परेचर चाहिए, तो उसके लिए न्यूक्लियर सोर्स हो सकता है। ठीक है, तो दिस आर दी कंपोनेंट्स ऑफ, so these are the common components of thermoionic converter। और इन दोनों के बीच के स्पेस को क्या कहते हैं, इट इज नोन एज इंटर इलेक्ट्रोड स्पेस। ओके, these are thermoionically emitted electrons, space charge neutralized ion hot emitter, this is vacuum or vapor, this is your cold collector, this is your anode, that is heat sink, this is the enclosure, that is the container outer surface, this is the heat source, and the electrons are fed through this electrical load. So these are the typical common components of the thermoionic converter. Now अब आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा और कोशिश करते हैं जानने की। we'll see important aspects क्या है इसके। The cathode must emit an abundant supply of electron, क्योंकि अगर हमारा emission नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन जो है कोल्डर सरफेस पे जाके कलेक्ट नहीं होगा, पहला है। दूसरा है इवापोरेशन ऑफ एटम्स फ्रॉम कैथोड शुड बी नेग्लिजिबल, बिकॉज अगर एवापोरेट हो जाएगा तो ये पॉसिबल नहीं है फिर कि हम उसको कलेक्ट कर सके, क्योंकि हमें इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट चाहिए, कहाँ से, हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ। तो एवापोरेशन जो है नेग्लिजिबल होना चाहिए। पहला है कि कैथोड जो है वो एमिट करना चाहिए एबंडेंट सप्लाई में इलेक्ट्रॉन को। दूसरा, एवापोरेशन ऑफ एटम जो है वो कैथोड से नेग्लिजिबल होना चाहिए। और तीसरा है कि इलेक्ट्रॉनिक स्पेस चार्ज बिल्ड अप इन द इलेक्ट्रोड स्पेसिंग मस्ट बी एलिमिनेटेड। राइट, सो अगर हम क्लासिफिकेशन देखें इसका, तो क्लासिफिकेशन आर अकॉर्डिंग टू द मेथड्स ऑफ न्यूट्रलाइजेशन स्पेस चार्ज, दैट इज वैक्यूम क्लोज स्पेस एंड सीजियम गैस फील्ड। ठीक है, तो ये दो तरह का होता है और इसका क्लासिफिकेशन डिपेंड करता है ऑन द मेथड्स ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ स्पेस चार्ज। पहला है वैक्यूम क्लोज स्पेस और दूसरा है सीजियम गैस फील्ड। राइट,
अब हम देखते हैं कि वैक्यूम क्लोज स्पेस कन्वर्टर क्या है। इट हैज बीन अंडर एक्सटेंसिव रिसर्च सिंस 1957. Physical spacing of 0.005 inch or less is maintained between anode और cathode. तो जो स्पेसिंग है उस पर डिपेंड करेगी। जो वैक्यूम क्लोज स्पेस कन्वर्टर है वो डिपेंड करेगा कि हमारा जो एनोड है और जो कैथोड है, जो दो इलेक्ट्रोड है, उनके बीच की फिजिकल स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए। तो इट शुड बी लेस देन 0.005 इंच. Will have engineering difficulty and lifetime is only about 40 hours. So vacuum closed space converter are not used commonly because it has a lifetime of only 40 hours. सीजियम गैस फील्ड, जो अभी मैंने पहला जो प्रिंसिपल में बता रहा था उसमें सीजियम आपको गैस फील्ड कंटेनर दिखाया था, वही बेसिकली इसलिए यूज करते हैं क्योंकि इसकी जो लाइफ टाइम है इट हैज बीन अकाउंटेड फॉर अबाउट 600 आवर्स. So cesium gas is filled between anode and cathode. Working efficiency is higher than the former one. Okay. Now lifetime के बारे में अगर बात करें, it's nearly 600 hours. And main problem is efficient sealing and corrosive nature of cesium. तो इसका जो प्रॉब्लम है वो ये है कि जो सीजियम है वो करोसिव नेचर का होता है. ठीक है, तो एक ये इसकी लिमिटेशन है. एडवांटेजेस, एडवांटेजेस क्या क्या है थर्मोआयनिक कन्वर्जन में? पहला तो दिख रहा है हमें साफ साफ कि रोटेटिंग इक्विपमेंट इसमें यूज नहीं होता है. सो नो रोटेटिंग इक्विपमेंट इज एम्प्लॉयड. लिक्विड वेपर फेज प्रॉब्लम्स डू नॉट एग्जिस्ट. सेपरेटर्स फॉर फ्लूइड्स आर नॉट रिक्वायर्ड, कोई जरूरत नहीं है. फ्रिक्शनल लॉसेस भी नहीं है ड्यू टू बियरिंग्स नॉट प्रेजेंट, कोई फिजिकल मूवमेंट नहीं है, कोई रोटेशन नहीं है, तो फ्रिक्शनल लॉसेस भी नहीं है. तो इसके एडवांटेजेस हैं. डिसएडवांटेजेस क्या है? इंडिविजुअल डिसएडवांटेजेस भी हैं कुछ. पहला है कि इंडिविजुअल कन्वर्टर्स आर लो वोल्टेज हाई करंट डिवाइसेस. इसका वोल्टेज कम होता है. ठीक है, और अ लार्ज नंबर ऑफ कन्वर्टर्स मस्ट बी सीक्वेंसली अरेंज्ड टू ऑब्टेन यूजफुल वोल्टेज. तो हमको अगर एक लार्ज नंबर ऑफ एक लार्ज अमाउंट में हमको अगर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी है, एक अच्छा आउटपुट चाहिए, तो उसके लिए हमको एक लार्ज नंबर ऑफ कन्वर्टर को सीक्वेंसली अरेंज करना पड़ेगा एक यूजफुल वोल्टेज को एक्सट्रैक्ट करने के लिए. ठीक है. Power losses in converters can seriously cut useful power output. So these are the disadvantages. Now coming towards the application. इसका जो एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन है आपका इस पावर, एक तो न्यूक्लियर स्पेस एप्लीकेशन है. दिस डायग्राम shows the nuclear thermoionic power system for space applications, right? So this is a schematic diagram of an in-pile nuclear thermoionic power system for space application. तो इसमें स्पेस में इसका एप्लीकेशन है. दूसरा है आपका फॉर पावर सिस्टम, राइट? सो this is a schematic diagram of an output of a pile nuclear thermoionic power system for space application. So these are the two applications. So this was all about your thermoionic converter. I have told you the definition of thermoionic converter, what is the basic principle behind the thermoionic power converter, what are the application advantages as well as the disadvantages. Thermoionic conversion के बारे में यही है आपके सिलेबस में. Thermoionic conversion is basically the heat energy converting into electrical energy, जो कि हम अचीव करते हैं थर्मोआयनिक कन्वर्टर में. और उसका दूसरा बेसिक प्रिंसिपल है कि इलेक्ट्रॉन का एमिशन होना चाहिए हॉट मेटल सरफेस से या ऑक्साइड से, और उस हॉट सरफेस से इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करके हमें कलेक्ट करना चाहिए कोल्डर सरफेस पे, और इस टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से एक ईएमएफ जनरेट होगा, दैट इज एन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. एक वोल्टेज जनरेट होगा जिसकी वजह से करंट का फ्लो स्टार्ट होगा, और इस करंट की वजह से जो हीट एनर्जी है हमारी वो इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी में कन्वर्ट करेगी. ठीक है. दो तरह का इसमें टाइप्स भी मैंने आपको बताया है, जिसमें आपका इलेक्ट्रोड होता है, उसको
हम एक कंटेनर में इंसर्ट करते हैं, तो उसके बेसिस पे हमारा उसका क्लासिफिकेशन भी दो है, एक वैक्यूम क्लोज्ड है और दूसरा सीजियम गैस फील्ड है। तो सीजियम गैस फील्ड का हम ज्यादा यूज करते हैं क्योंकि इसका लाइफ टाइम इज ऑल अबाउट 600 आवर्स। बट अगर हम वैक्यूम क्लोज स्पेस को देखें तो उसका जो लाइफ टाइम है इट इज ओनली अप टू 40 आवर्स, राइट। और जो इफिशियंसी है अभी तक थर्मोआयनिक कन्वर्जन की वो पाई गई है अराउंड 10%। और इसका डिसएडवांटेज ये है कि वोल्टेज जो है वो बहुत ज्यादा इसमें इंड्यूस नहीं कर सकते हम, तो हमें एक सीक्वेंशियल थर्मोआयनिक कन्वर्टर यूज करना पड़ेगा अगर हमको एक अच्छे अमाउंट का, एक लार्ज अमाउंट का वोल्टेज को क्रिएट करना है या इलेक्ट्रिसिटी को हमें जनरेट करना है, राइट। सो दिस इज अ वेरी न्यू type of energy sources which is counted actually under the renewable, that is the non-conventional sources, because it is again pollution free है, ठीक है, इको फ्रेंडली है और ग्लोबल वार्मिंग से कोई इसका रिलेशन नहीं है, राइट। और आपका जो हीट सरफेस है, हीट सोर्स है, वो दो तरह का होगा इसमें, एक तो आपका सन हो सकता है, दूसरा न्यूक्लियर पावर हो सकता है। तो हीट सोर्स का होना बहुत जरूरी है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव यही है, बिकॉज उसी सोर्स से एमिशन करोगे इलेक्ट्रॉन का और उसको इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करोगे, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट योर, और आजकल के स्पेस प्रोग्राम में हम काफी यूज करते हैं इसका, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट योर थर्मो आयनिक कन्वर्जन सिस्टम, राइट। So this was all about your thermoionic conversion system. In next lecture, we'll talk about the wind energy. अगर आपको कोई confusion है, you can ask your queries related to this lecture. Thank you so much.